Hello dear students, how are you? I hope all are fine, safe and healthy. Today I am going to teach you chapter 18, our rights and duties. Okay, we will study about our fundamental rights and duties of in this chapter. Let's begin with get set. Read the following. Right R if it is your right. Write D if it is your duty. Okay, to get healthy food. Yes, so this is your right or duty. क्या होता है ये? To get healthy food, अच्छा खाना खाना, healthy food खाना, ये आपका right है कि ये आपकी duty है? Yes, very good. This is our right. Okay, क्या है ये हमारा right? So write first letter in capital R in your book. Okay, and not to waste food. Number B, not to waste food. This is our right or duty? ये आपका right है या फिर duty? Yes, any guess? Very good. This is our duty. Okay, very good. So write D here. Yes, now to play. Number 3. Yes, A, to play. खेलना आपका right है या आपकी duty है? Yes, any guess? Use your sense. Hurry up, be quick. Yes, this is our right. Okay, very nice. Now to play fair. To play fair, this is right or duty? Yes, be quick. To play fair means without any cheating, you have to play fair. Very nice. This is our duty. Very good. All are lovely students and sensible students. Yes. Now number 2, to keep the school clean. This is your right or duty? Wow. Very nice. This is our duty. Okay. And to go to school. School जाना और वहां पर जाकर पढ़ाई करना. This is your right or duty? Very nice. This is your right. Very good. Now here, not to use words that hurt others. हमें ऐसे words use नहीं करने चाहिए जो दूसरों को hurt करते हैं. Okay? जो दूसरों को pinch हो जाते हैं, ऐसे words हमें use करने. Not to use words that hurt others. This is our right or duty? Hurry up. This is our duty. Okay? Very nice. Now to say what you think. जो भी हम सोचते हैं उसको एक्सप्रेस करना, उसको कहना, जो भी हम तो अपने व्यूज को शेयर करना दूसरे पर्सन से. तो दिस इज अवर राइट और ड्यूटी? यस, दिस इज अवर राइट. गॉट इट? सबको समझ में आ गया? एवरीबॉडी हैव अंडरस्टूड? वेरी नाइस. ऑल हैव अंडरस्टूड nicely, I think. Okay, now I'm clearing all. Yes, now next. Our country has a set of rules. अब हमारी country का क्या है बेटा? Our country, India, is having a set of rules. Okay, and according to which the government governs the country. हमारी country India के कुछ rules हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, लिखे हुए हैं. Those are written in our Constitution of India. So according to which our country runs or work. Okay, so to which the government governs the country, according which हमारी जो country के जो people हैं वो सारे उसी के accordingly work करते हैं. This set of rules is called constitution. इन्हीं rules को क्या कहा जाता है? Constitution. Got it? Yes, very nice. Our country also has a constitution. हमारी country India के भी constitution है. The Constitution of India is the longest written constitution in the world. Remember this thing. हमारी जो country India है पूरे world का सबसे longest constitution है India का. Okay, so you can frame the question in your practice notebook. I hope everybody has kept the practice notebook near you. सबके पास practice notebook होगी तो उसमें question frame कर लीजिए. Which is the
Okay, which is the longest written constitution in the world? So what is our answer? Answer is the Constitution of India is the longest written constitution in the world. Got it everyone? Very nice. It came. We are it किसके लिए आया यहाँ पे, किसके लिए यूज किया हुआ है? Our constitution. Okay, our constitution came into effect on 26 January 1950. Okay, कौन से ईयर में हमारे और कब हमारे ये इफेक्ट में आया था? So our constitution of India came into effect on 26 January 1950. Okay, it started from this date. Okay, and India became a republic. Or from that day, our country India became a republic. Since then, this day is celebrated as a Republic Day. That is why we celebrate as a Republic Day. This day is as a Republic Day. Okay, clear everyone? Yes, now fundamental rights. So, wait a minute. Yes, and do you know students who has written our constitution? किसने लिखा है हमारा constitution? Yes, very nice. Which statue is this? This is the statue of Bhim Rao Ambedkar. Dr. B.R. Ambedkar means Dr. Bhim Rao Ambedkar was the architect of Constitution of India. So please write in your practice notebook who was the architect of the Constitution of India. Frame one more question from this line. Yes, very nice. The answer is Dr. Bhim Rao Ambedkar was the architect of Constitution of India. Okay, now we will study about our fundamental rights. Okay, in our Constitution of India, some fundamental rights are given for every citizen, for all the citizens. सबके लिए हमारे Constitution में fundamental rights दिए हैं. Okay, so our Constitution gives every citizen, सारे citizens को सब having some basic rights. These are called fundamental rights. जो हमको rights दिए गए हैं Constitution में, उनको कहा जाता है fundamental rights. Got it? And these rights are for the well-being of the citizens. और किसके लिए? जो citizens हैं, जो people हैं country के, उनके लिए welfare के लिए ये fundamental rights बनाए गए हैं. Okay, we can move court to protect these rights. If someone denied or refused to accept our fundamental rights, so we can complain, and then we can complain. We having the rights to complain in the court. Okay, we can move to court to protect these rights. हम अपने rights को protect करने के लिए हम court में जा सकते हैं. If someone denied, if someone refused. Okay, अगर कोई हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है उनको एक्सेप्ट नहीं करता है, उनको मना कर देता है, रिफ्यूज कर देता है, तो हम कहाँ कोर्ट में कंप्लेन कर सकते हैं, कोर्ट में जा सकते हैं. ओके, for to get our rights. There are 6 fundamental rights. How many rights are there? Hurry up, जल्दी से लिखिए फटाफट से. Hurry up, be quick. Write in a practice notebook. How many fundamental rights are there? Yes, 6 fundamental rights. बेटा आपको नोट करना इसलिए जरूरी है. It is very necessary to note down so that you could refresh your knowledge later on. Okay, and don't forget. Okay, whenever we write something, so we learn for a long time in our mind. Yes, now first one is the right to equality. अब 6 fundamental rights को हम डिटेल में पढ़ेंगे. We will study about the 6 fundamental rights in detail. Okay, so the right to equality means, क्या होता है इसका मीनिंग, ध्यान से समझिएगा. Right to equality means that all the citizens are equal before the law. Means law means rules. मीन्स जितने भी रूल्स हैं हमारे बनाए हुए कॉन्स्टिट्यूशन में, उन सब के लिए सारे इंडिया के जो पीपल हैं वो सब इक्वल हैं. ओके, ऑल द पीपल ऑफ इंडिया आर equal before our constitution, before the law. Okay, all citizens irrespective of their religion, caste, race, sex and place of birth are treated as equals. Means
ऑल सिटीजन, सारे सिटीजन, सारे जो पीपल हैं, ऑल द पीपल ऑफ इंडिया, ऑल द सिटीजन्स ऑफ द पीपल और सिटीजन ऑफ इंडिया, चाहे वो किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हैं, वेदर दे बिलोंग टू क्रिश्चियनिटी, मुस्लिम्स, हिंदुइज्म और आपके जैनिज्म, किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हैं और किसी भी कास्ट से बिलोंग करते हैं, चाहे वो ब्राह्मण है, चाहे वो जनरल कास्ट से बिलोंग करते हैं, चाहे वो शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करते हैं, ओके, चाहे ट्राइब से बिलोंग करते हैं, तो किसी भी कास्ट से बिलोंग करते हैं, सो ऑल आर इक्वल। ये नहीं है कि अगर वो ब्राह्मण है तो वो सबसे बड़ा हो जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन के आइज में, नो। और जो स्वीपर क्लास है पीपल है, जो स्वीपर क्लास पीपल हैं, वो लोअर कास्ट पीपल हैं, वो क्या उनके लिए नीचे हो जाएंगे? नो, एवरीबडी, एवरी सिटीजन इज इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ। ओके, कानून की नजर में, लॉ की नजर में सब पीपल इक्वल हैं। ओके, चाहे वो किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हैं, चाहे वो किसी से भी बिलोंग करते हैं, ओके, चाहे किसी रिलीजन से बिलोंग करते हैं, चाहे कास्ट से बिलोंग करते हैं, और चाहे रेस के किसी तरह का भी रेस हो और किसी तरह का भी सेक्स, मीन्स चाहे वो गर्ल है या बॉय है या मैन है, विमेन है, ओके, एंड प्लेस ऑफ बर्थ, चाहे वो किसी भी प्लेस में उनका बर्थ हुआ है, वेदर इन एनी स्टेट, ओके, एंड आर ट्रीटेड एज इक्वल। तो सभी को गवर्नमेंट की जो आई है उनमें इक्वल समझा जाता है। ओके, गॉट इट ऑल ऑफ यू? यस, नाउ नेक्स्ट वन इज, यस, अब हमने ये राइट टू इक्वालिटी हमने अपना पढ़ लिया, अब हम नेक्स्ट वन पढ़ेंगे, राइट टू फ्रीडम। ओके, सो नेक्स्ट राइट कौन सा है हमारा? नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से प्रैक्टिस नोटबुक में, राइट टू फ्रीडम। ध्यान से सुनिएगा, राइट टू फ्रीडम, द राइट टू फ्रीडम अलाउज ऑल सिटीजन्स टू स्पीक। क्या क्या अलाउ करता है? क्या हमको ये इसके अंदर हमें किस चीज की फ्रीडम हमको मिलती है? स्पीक फ्रीली। स्पीक फ्रीली मीन्स वी कैन speak or we can express our thoughts, whatever we want to say, and something हम कुछ भी कहना चाहते हैं, we want to speak, we can speak freely, this is our fundamental right। okay, गवर्नमेंट ने हमको ये फ्रीडम दी है। ओके, हम अपने व्यूज, अपने आइडियाज सब कुछ एक्सप्रेस कर सकते हैं। नोबडी कैन स्टॉप अस, कोई हमको स्टॉप नहीं कर सकता, कोई हमारे जो हमको रोकेगा तो हम उसको क्या, उसके अगेंस्ट में हम कोर्ट में जा सकते हैं। ओके, एंड नाउ नेक्स्ट इज हियर, चूज एनी ऑक्यूपेशन एंड choose any occupation, it means we are having right to choose any occupation। कोई सा भी occupation follow कर सकते हैं, कोई भी हम occupation choose कर सकते हैं स्टडी के लिए, whether we want to study of engineer we can do, or we want to follow the occupation of doctor, engineer, लेकिन हमारे पास डिग्री तो होनी चाहिए ना उसके लिए, तो हम उसके लिए भी, स्टडी के लिए भी हमारे पास फ्रीडम होती है। ओके, तो हमको कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको फ्रीडम दी है, वेदर हम चाहे कोई सी भी स्टडी करना चाहते हैं और कोई सा भी हम ऑक्यूपेशन चूज करना चाहते हैं, वी कैन डू एनी काइंड ऑफ जॉब, वी कैन डू, वी आर हैविंग फ्रीडम। ओके, एंड रिजाइड एंड ट्रेवल एनीवेयर, और चाहे हम कहीं भी रह सकते हैं अपनी कंट्री में और कहीं भी हम ट्रेवल कर सकते हैं, वेदर वी वांट टू लिविंग एज वी आर लिविंग हियर नाउ राजस्थान, चाहे हम राजस्थान में रह रहे हैं, लेकिन बट वी वांट टू नाउ, अब हम चाहते हैं कि हम दूसरी स्टेट में जाके रहेंगे या दूसरी सिटी में जाके रहेंगे। जैसे अभी जयपुर में रह रहे हैं तो हम कहाँ चले जाएंगे? अगर हमको कहाँ जाना है, हमको आगरा जाना है तो हम आगरा में जा सकते हैं। ओके, चाहे हमें कोटा जाना है तो हम कोटा जा सके, रह सकते हैं। ओके, दिस इज अवर चॉइस, तो वी आर फ्री टू लिव एनीवेयर, चाहे हम साउथ इंडिया में जाके रहें, चाहे हम ईस्ट इंडिया में जाके रहें, चाहे नॉर्थ इंडिया में जाके रहें, कहीं भी, एनीवेयर एल्स वी कैन लिव, वी आर फ्री। ओके, और कहीं भी हम घूमने फिरने भी जा सकते हैं विद इन द कंट्री, अपनी कंट्री में। गॉट इट? इट ऑल्सो प्रोवाइड फॉर, अब क्या प्रोवाइड कराता है हमको? देखिए, इट प्रोवाइड free and compulsory education for all children between 6 and 14 years of age। Remember this thing students, कि देखो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने, हमारी गवर्नमेंट ने कितना अच्छा किया है चिल्ड्रन के लिए। फॉर पुअर चिल्ड्रन, दोज हु आर नॉट हैविंग सफिशिएंट मनी, सो उनके पास एजुकेशनल राइट भी है।
ओके तो वो उनको गवर्नमेंट ने फ्री एजुकेशन और कंपलसरी एजुकेशन मींस सबको एजुकेशन लेनी है, ओके बिटवीन 6 years to and 14 years of age. So education is totally free in government schools. This is our fundamental rights. Got it? And इस और इसका मतलब क्या है? A child is meant to learn, not to earn. तो गवर्नमेंट ने हमारे स्लोगन भी बनाया है, क्या दिया है कि अ चाइल्ड इज मीन टू लर्न, हमें सीखना है, हमें पढ़ना है, हमें लर्न करना है। चाइल्ड का मतलब यही होता है कि बच्चों को पढ़ना है, लिखना है, सीखना है, ओके एंड नॉट टू अर्न, नॉट टू अर्न कि बचपन में चाइल्डहुड में किसी कोई भी जॉब नहीं करेगा, कोई भी पैसा कमाने नहीं जाएगा। गॉट इट एवरीवन? Yes, I think everybody has understood nicely. Yes, now next third one is right against exploitation. What is the meaning of this? Exploitation means, listen carefully and write down in your practice notebook everyone. Exploitation का meaning होता है to treat someone unfairly in order to get some benefit. Means जैसे किसी को कुछ फायदा लेना है तो वो किसी से ज्यादा काम करवा ले और उसको कम पैसे दे, उसकी जो वेजेस है, उसको जो जो जॉब का जो उसका पैसा बनता है इतना उसका अमाउंट ना देके उसे कम पैसे दे। So this is called unfair, this is called exploitation, okay? And the right against exploitation ensures that poor people are not made for work, not to work. और दिस ये जो राइट का मीनिंग है एंश्योर्स, ये राइट ये भी एंश्योर करता है, ये भी कंफर्म करता है कि पुअर पीपल जो हैं आर नॉट मेड टू वर्क विदाउट पे, कि उनको बिना पैसे दिए कोई उनसे काम तो नहीं करवा रहा है। सो दिस इज द फंडामेंटल राइट, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, इसका मतलब यही है, ओके तो हम किसी से भी बिना पैसे के हम काम नहीं करवा सकते हैं, ओके This right also does not allow children below 14 years of age to be employed. और 14 years से नीचे के जो बच्चे हैं, 14 years से एज के से भी नीचे के जो बच्चे हैं उनसे हम वर्क नहीं करवा सकते हैं, ओके उनको नौकरी पर, उनको जॉब पर नहीं रख सकते हैं। Got it everyone? Okay, now next is right to freedom of religion. राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। अब रिलीजन मीन्स से फॉर एग्जाम्पल हम किससे, हम पंजाबी फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो इफ वी वांट टू चेंज अवर रिलीजन सो वी कैन चेंज, दिस इज अवर फंडामेंटल राइट। ये गवर्नमेंट ने हमको, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको ये राइट भी दिया है कि हम कोई सा भी रिलीजन चूज कर सकते हैं। We can change our religion. The right to freedom of religion means that all people are free to follow any religion. Means कोई से भी religion को follow कर सकते हैं, चाहे वो मुस्लिम्स हैं तो वो अगर वो हिंदू बनना चाहे तो वो हिंदू बन सकते हैं, ओके कोई सा भी follow कर सकते हैं। This is the fundamental right, ओके कोई सा भी फेस्टिवल सेलिब्रेट करना चाहे तो वो सेलिब्रेट कर सकते हैं। Now right number 5, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। अब जो हमारे कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स हैं वो क्या चीज होती है? यस, सो लिसन केयरफुली ऑल ऑफ यू, ध्यान से सुनेंगे। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स में ये है अपना ग्रुप्स ऑफ पीपल हु आर लेस इन नंबर आर कॉल्ड माइनॉरिटीज। मींस कुछ ग्रुप्स ऐसे होते हैं, कुछ रिलीजन ऐसे होते हैं जिनके जो पीपल हैं, नंबर ऑफ पीपल हैं उस ग्रुप के कम हैं। जैसे अपने जैनिज्म है, जैनिज्म में फॉर एग्जांपल जैनिज्म इज आर वेरी लेस नंबर ऑफ पीपल आर देयर इन जैनिज्म, ओके तो जैन धर्म में कम नंबर के, कम के ग्रुप के पीपल जो हैं वो लेस नंबर में हैं, उनका नंबर बहुत लेस है, तो उनको क्या कहा गया, माइनॉरिटीज कैटेगरी में आ गए वो लोग, ओके सो ऐसे ही काफी सारे ग्रुप्स हैं जो माइनॉरिटीज कैटेगरी में आते हैं। तो दिस राइट प्रोटेक्ट्स द माइनॉरिटीज। तो हम किसी को ऐसे फोर्स नहीं कर सकते कि भाई आपके तो ग्रुप के पीपल कम है तो आप, हमारे ग्रुप के पीपल ज्यादा है तो आप हमारे ग्रुप में इंक्लूड हो जाइए, ओके नो वी कैन नॉट डू दिस। सो दिस राइट प्रोटेक्ट्स द माइनॉरिटीज, यानी कि जो कम नंबर के, जो लेस नंबर के जो पीपल हैं, ग्रुप पीपल, तो जैनिज्म है तो उनको भी ये प्रोटेक्ट करते हैं, ओके इट अलाउज देम टू डेवलप एंड प्रिजर्व देयर राइट्स। तो ये वाला राइट जो है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, उनके ऐसे माइनॉरिटीज ग्रुप्स को डेवलप करता है, उसको ग्रो करता है और उनको प्रिजर्व करता है, उनके कल्चर को प्रिजर्व करता है, प्रोटेक्ट करता है, ओके यस
आई होप सबको अच्छे से, बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा. हाँ, यू मस्ट राइट देम. नाउ ऑल इंडियन सिटीजन्स आर इक्वल बिफोर द लॉ. कितनी अच्छी बात है, वेरी नाइस. यस, in front of, in the eyes of government, in the eyes of constitution, all Indian people are equal. सभी के लिए सेम रूल्स हैं. लॉ मीन्स रूल्स. ओके, रूल्स ऑफ गवर्नमेंट. गॉट इट? सो इक्वालिटी. नाउ नेक्स्ट, let's move to the next one. Yes, right to constitutional remedies. So ये हमारा लास्ट का राइट है. सो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, इसका मीनिंग होता है, ध्यान से सुनिएगा, लिसन केयरफुली एवरीवन. द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज अलाउज एवरी सिटीजन टू मूव कोर्ट इफ एनी ऑफ देयर राइट्स आर डिनाइड. मीन्स जितने भी राइट्स हमको मिले हैं, गवर्नमेंट ने दिए हैं, जो हमने 1 to 5 राइट्स अभी पढ़े हैं, स्टडी किए हैं, तो अगर कोई डिनाई करता है, उनको एक्सेप्ट नहीं करता है, उनको रिफ्यूज करता है, तो हम कोर्ट में जा सकते हैं उनकी प्रोटेक्शन के लिए. अपने किसी भी राइट की प्रोटेक्शन के लिए हम कोर्ट में जा सकते हैं इफ सम अगेंस्ट दैट पर्सन. गॉट इट एवरीवन? यस. अब लेट्स असेस योर नॉलेज. अब चलो आपकी नॉलेज से चेक कर लेते हैं कि आपको कितना समझ में आया है. ओके, yes, now let's just note down in your practice notebook. Fill in the blanks. The blank day is celebrated on 26 January. 26 जनवरी को कौन सा डे सेलिब्रेट किया जाता है? हरी अप जल्दी से बताइए. बी क्विक, आंसर मी फास्ट. एनी गेस? 26 जनवरी को हम क्या सेलिब्रेट करते हैं? यस, वेरी गुड, रिपब्लिक डे. वेरी नाइस, Republic Day. Yes, write down. Everybody has to write down in practice notebook. सबको notebook में लिखना है so that you can learn for a long time all these exercises. Okay, the fundamental rights are, what are the numbers of our fundamental rights in number? Yes, very nice, smart students. Love you all. I'm clapping for your efforts. Very nice. 6 fundamental rights. Okay. How many rights? 6 fundamental rights. Now, third one is the right to blank allows citizens to travel wherever they want. हमारा ऐसा कौन सा राइट है जिससे कि हम कहीं भी ट्रेवल कर सकते हैं? जो कंट्री के, हमारी कंट्री के जो पीपल हैं, वो किसी भी सिटी में जाके रह सकते हैं और कहीं भी जाके वो अपनी जो सिटी है उसको चेंज कर सकते हैं, कहीं भी वो ट्रैवल कर सकते हैं. कोई उनको प्लेस विजिट करना है तो वो उसको भी विजिट कर सकते हैं. सो डू यू नो विच वन इज दैट? यस, वेरी नाइस, दैट इज फ्रीडम. द राइट टू फ्रीडम. राइट इन योर प्रैक्टिस नोटबुक ऑल ऑफ यू. यस, राइट टू फ्रीडम. नाउ नेक्स्ट वन इज number 4, children who are less than, yes, who are less than or blank years of age. कौन सी एज के बच्चे हैं जिनको children who are less than years of age? तो हम इसमें क्या आएगा बेटा? हरिया बी क्विक. क्या कहते हैं उनको? who are less than, yes, 14. कौन सी एज के ग्रुप के पीपल है, चिल्ड्रन है? 14. ओके, 14 years of age cannot work. 14 years से जो कम के बच्चे हैं वो काम नहीं कर सकते हैं, उनको जॉब करना अलाउड नहीं है. ओके, नाउ नंबर 5, द ब्लैंक आर पीपल हु आर लेस इन नंबर. तो जो लेस ग्रुप हैं, लेस नंबर के जो ग्रुप्स हैं, उनको क्या कहा जाता है? हरी आप. यस, वेरी गुड, माइनॉरिटीज. क्या कहते हैं बेटा उनको? माइनॉरिटीज. ओके, गॉट इट एवरीवन? यस, वेरी गुड. सबने नोट कर लिया? ओके, नाउ आई एम क्लियरिंग ऑल. Yes, so as a government has given some fundamental rights,
So same as governments wants that we must follow some fundamental duties, ऐसे ही गवर्नमेंट हर सिटीजन से, एवरी सिटीजन से एक्सपेक्ट करती है कि हम सारे अपने फंडामेंटल ड्यूटीज को भी फॉलो करें। तो गवर्नमेंट ने हमको क्या दिया है, सम फंडामेंटल ड्यूटीज। गॉट इट एवरीवन? ओके, नाउ लेट्स start. The Constitution of India expects the citizens to perform certain duties. तो हमको कुछ ड्यूटीज भी परफॉर्म, जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज है तो हमें वो भी फॉलो करनी होती है, उनको भी उनके अकॉर्डिंग हमको करना, अपने जो है उन ड्यूटीज को परफॉर्म करना होता है टुवर्ड्स द कंट्री, अपनी कंट्री के लिए। ओके, सच ड्यूटीज आर कॉल्ड फंडामेंटल ड्यूटीज। Remember this thing and you have to note down these duties in your practice notebook. Some of them are, we must abide by the constitution. हमें constitution के according ही अपने फॉलो, उनकी जो रूल्स है वो फॉलो करने हैं, उसी के अकॉर्डिंग हमें चलना है। ओके, उनको एक्सेप्ट करना है एंड उनके अकॉर्डिंग हमको वर्क करना है। वी मस्ट शो रेस्पेक्ट टू द नेशनल फ्लैग एंड द नेशनल एंथम। तो हमारा सेकंड हमारा क्या राइट है बेटा, कि वी मस्ट शो रेस्पेक्ट। जब भी कभी, वेन एवर नेशनल फ्लैग होइस्ट in the at the time of national flag hoisting, so this is your prime duty, this must be your prime duty. You must stand in attention position, okay, in the respect of national flag. Got it? हमें नेशनल फ्लैग जब भी कभी होस्ट होता है तो आपको, आपकी ड्यूटी क्या है, आपको एकदम अटेंशन पोजीशन में खड़े हो जाना है। ओके, एंड द नेशनल एंथम, और हमें अपने नेशनल एंथम की रेस्पेक्ट करनी चाहिए। तो नेशनल एंथम की हम कैसे रेस्पेक्ट करेंगे, जब भी नेशनल एंथम हमारा कहीं पे भी रन हो रहा है, कहीं पे भी सिंग हो रहा है, तो आपको अटेंशन पोजीशन में होके आपने सिंग करना है, सिंग अलोंग, यू हैव टू सिंग अलोंग व्हेनेवर नेशनल एंथम is singing or running, okay, or playing, wherever, kahin bhi, okay, so you must stand in attention position. Now next one is, we must take care of the environment. As you can see in the picture, keeping our surroundings clean is our fundamental duty. Got it? हमारी सराउंडिंग्स को क्लीन करना ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है। ओके, सो वी मस्ट फॉलो दिस ड्यूटी ऑल्सो, हमें इस ड्यूटी को फॉलो करना है। ओके, सो बिकॉज दिस कंट्री इज अवर बिग हाउस, ये हमारी कंट्री क्या है, हमारा बड़ा, बहुत ही बड़ा बिग हाउस है। तो हमें क्या करना है, इसके अकॉर्डिंग हमें इसको, हमें जैसे आप अपने घर को क्लीन करते हैं तो सेम आप अपने सराउंडिंग्स को भी क्लीन रखने के लिए क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। ओके, नाउ अब हमारे पास कुछ प्रिंसिपल्स भी हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। तो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स आर आवर कॉन्स्टिट्यूशन लिस्ट फ्रॉम सम गाइडलाइंस फॉर द गवर्नमेंट। तो ये कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में कुछ गाइडलाइंस होती हैं फॉर द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के लिए। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में गवर्नमेंट के लिए भी कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं, कुछ रूल्स बनाए गए हैं। किस लिए, फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, टू एंश्योर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, लोगों की भलाई के लिए, कि वेदर जो गवर्नमेंट के जो पीपल हैं वो सिटीजन की जो प्रॉपरली उनके लिए भलाई के लिए वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ओके, उनकी दे आर डूइंग द वर्क फॉर वेलफेयर ऑफ द सिटीजन्स, फॉर द सिटीजन्स और नॉट। ओके, सो दे टाइम टू टाइम दे चेक, these people check. So for them, for these government people, directive principles are made by our constitution. These directive principles are written in our constitution. हमारी constitution में ये लिखे हुए हैं rules. Okay, so these are called directive principles, and the constitution asks the government to ensure that, क्या ensure करते हैं government के constitution, क्या अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन आज द गवर्नमेंट क्या उनसे गवर्नमेंट से इंश्योर करती है कि वेदर पीपल है प्रॉपर कंडीशंस, लिविंग कंडीशंस, लोगों के पास रहने के लिए जगह है या नहीं है, उनको ठीक से वो रह रहे हैं कि नहीं।
whether they are getting proper water facility, whether they are getting electricity facility, whether there are in their neighborhood there are hospitals are opened or not, the schools are open for the school for the children. Okay, so people have proper living conditions. इसको भी गवर्नमेंट की ड्यूटी है उनको प्रॉपर लिविंग कंडीशंस प्रोवाइड कराना. एवरी चाइल्ड गोज टू स्कूल और सभी बच्चे ऑल द चिल्ड्रन ऑफ द कंट्री मस्ट गेट एजुकेशन इन द गवर्नमेंट स्कूल्स. जो जिनके पास जो लोअर क्लास के फैमिली के पीपल हैं, जो पुअर पीपल हैं, तो जिनके पास मनी नहीं है स्कूल में प्राइवेट स्कूल्स में पे करने के लिए, तो वो स्कूल को उन चिल्ड्रन को फ्री एजुकेशन मिलती है गवर्नमेंट स्कूल्स में. ओके, तो ये गवर्नमेंट पीपल को इंश्योर करना होता है कि whether they are getting whether the poor children are getting education or not. Okay, so that is why they are providing the free education in the government schools. Even the midday meals also provided to the children in the government schools. So midday meal का भी उन्होंने provide कराया है government schools में. Okay, उनको books और सब कुछ free मिलता है वहां पर. Every person. Now next point is next rule क्या है हमारा, ये next principle क्या है, directive principles. Whether every person gets proper treatment when or he or she is sick. Means कि अगर कि ये भी उनका डायरेक्टिव प्रिंसिपल है कि जितने भी हमारे सिटीजन हैं उनको प्रॉपरली ट्रीटमेंट मिल रहा है हॉस्पिटल्स में या नहीं मिल रहा है, कि जब भी वो बीमार होते हैं तो उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट मिलना चाहिए. ये भी जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं तो इनके तो उन जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं जो उनको रन करता है ये उनके लिए बनाए गए हैं. ओके, कि उनको चेक करना है कि उनके जो अपने सिटीजन्स हैं उनकी वेलफेयर के लिए. गॉट इट एवरीवन? नाउ फैक्ट वाइज the directive principles listed in our constitutions were adopted from the Constitution of Ireland. Yes, underline this line. आप इसको अंडरलाइन कर लीजिए. ये क्वेश्चन आपने अपने पेरेंट्स से पूछना है कि और अपने कलीग से पूछना है, अपने फ्रेंड से पूछना है कि डू यू नो, yes, from where our country India were adopted from our constitution. From where the directive principles listed in our constitution, जो हमारे directive principles list किए हुए हैं हमारे constitution में, from where these rules directive principles adopted, from which country? Yes, Constitution of Ireland. कहाँ से बेटा? Constitution of Ireland से इनको अडॉप्ट किया गया है. Got it everyone? I think सबको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा. Everybody understood nicely? Any problem? No? Okay. Thank you so much all of you. If you have not subscribed my channel yet, तो आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा. Love you all. Stay safe, stay healthy. Take care.